Very good morning and Jai Hind, my dear students. Today we are going to do exercise 8.3, right? We have already completed exercise 8.1 in book and we have done a 8.2 in notebook. Now 8.3. Today we will be doing the book work and the notebook work. So all of you keep your maths book and notebook both with you all. Okay. So right now keep your book with you first and then we will be doing the notebook work, right? So now I'm showing you which page number you have to do. Just see that and you have to complete the whole page. Okay, so just wait, I'm showing you. Now you can see this is exercise 8.3 and we need to do question number A and B in the book. Okay, and it is on page number 147. It is on page number 147. All of you take out page number 147 and do this question A and B right now. Okay, and then after that we have to do the notebook work also. This is your notebook work. Today we are going to do exercise 8.3 question number A. ठीक है, क्वेश्चन नंबर A को सॉल्व करेंगे हम. दैट इज fill in the blanks. Okay, this fill in the blanks, how to solve I will be telling you in the notebook. Fill in the blanks, this we are going to do. So we are going to do question number 1, 2, 3, 4. 4 questions we will be doing in the notebook. So keep your book and notebook with you all and we will start it. Okay. So are you ready with your book and notebook? Right. So first keep your notebook and book all together. Open page number 147. Okay. Keep your book there 147 and notebook ready. So first let's me tell you how to solve the question number A. कैसे solve करते हैं, that you have to do in the notebook and then we will complete in the book also. Okay, so be ready. I'm starting the question number A first. All right, so now see here कैसे solve करना है question. In your notebook write down the heading exercise 8.3. क्या heading होगी? Exercise 8.3. Note down the heading question A. Fill in the blanks. Write down this. Now after writing this, let's do the first question. First understand how to solve. And ये जो fill in the blanks है, you have to complete in the book. आपको book में complete करना है. Okay? कैसे solve करते हैं that I am teaching you. But only 4 question I am going to tell you. Other you have to do by your own. Okay? पहला question है 7.264 kg is equals to dash kg dash gram. It's very easy. You all know that 1 kg is equals to 1000 gram होता है. ठीक है, wait, let me write here. Milligram, centigram, decigram, gram, decagram, hectogram and kilogram. ठीक है, so 1 kg is equals to how many gram? 1000. You all know this. So now अब यहाँ पे क्या दिया है 7.264 kg. So 1 kg equals to जब 7000 ग्राम होता है तो that means 7000 हो गया. So यहाँ पे fill in the blanks था. It was very easy. So ये क्या हो गया 7 kg and 264 ग्राम. कैसे किया मैंने? I'm telling you. अब ये क्या है 7.264. 7 आपका हो गया kg. डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होगा that will be your gram. You have to understand in this way. जो डेसिमल के पहले है that is your bigger units, तो that is your kg, and point के बाद 264 है that is your gram. So you will write here 7 and here 264. Do it, solve it, and then I will be explaining you the next question.
Here we have 7 kg and 264 gram. Got it? Now let's do the next question. So let me erase this first. You will be getting the PDF, so you don't have to worry it about. Okay, let me erase. Now next question is 999 gram. Okay, ग्राम को कन्वर्ट करना है, so let's do it. Second is 999 ग्राम. 999 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? केजी में. ठीक है, ग्राम को केजी में कर रहे हैं हम. ठीक है, अगेन डिफरेंस इज सेम. ओके, सो ना 1 kg इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 ग्राम. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्राम. तो इसका हम वाइस वर्सा करेंगे. सो 1 ग्राम, देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अपॉन 1/1000 kg. बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड. नाउ सी, अगर हम केजी से ग्राम में करते तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. बट अगर ग्राम से केजी में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. स्मॉलर टू बिगर, राइट? रिमेंबर दैट. स्मॉलर टू बिगर डिवाइड, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई. Okay, after writing this, next step will be therefore 999 gram is equals to 999 divided by 1000. हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, क्योंकि ग्राम है, ग्राम से केजी में करना है. नाउ देयर आर हाउ मेनी जीरो? 3. सो हमें 3 के पहले क्या लगाना होगा? डेसिमल. 0.999 kg. This will be your answer. So write down here 0.999 in your book. It is question number, last one, 8th number. In your book it is in number 8. Okay, do it. I have explained first and this is 8th. Alright. Now next I am explaining the third number. That is 0.750 kg. केजी है, ग्राम में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जब केजी में दिया और ग्राम में करना है, इट्स वेरी सिंपल. आपको मल्टीप्लाई करना है. सो राइट डाउन 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. देयरफॉर 0.750 kg इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई. 0.750 मल्टीप्लाइड बाई 1000. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट इन ग्राम. So write down here 0.750 kg equals to, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 750 में अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करते we will get what? 7. देखो सिंपल है. हाउ मेनी जीरो आर देयर? 3. तो अब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 3 प्लेस. तो 750 हो गया. So this will be now 750 gram. You can do like this, the underline and this arrow which I am doing. Okay, इस तरह से आपको इजिली समझ में आएगा. और एल्स यू कैन मल्टीप्लाई हियर. आप देख सकते हो उसको मल्टीप्लाई करके. इट्स योर विश. ओके, दिस इज द मेथड. पहले यूनिट मेंशन करो. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. देन उसको कन्वर्ट करना है. जब बिगर यूनिट से स्मॉलर में हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर टू बिगर में डिवाइड करते हैं. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. So I hope that you have understood these two questions, right? Now after this we need to do the next question. That is number 4. Number 4 in notebook and 7 number है book में. ठीक है, 4 and 7. सी कॉपी में आप 1 2 3 4 लिखोगे, बिकॉज वो अगर आप ये रियल नंबर्स लिखोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. सो दैट इज वाई. ओके, सो नाउ सी 1250 ग्राम को हमें केजी और ग्राम में कन्वर्ट करना है. यू ऑल नो दैट 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ग्राम. अब
1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, सो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर हम इसका वाइस वर्सा करें, उल्टा रेसिप्रोकल कर दें, सो दैट विल बी 1/1000 kg. Got it? So now therefore 1250 gram is equals to, क्या करना है अब हमें? डिवाइड. एज आई हैव टोल्ड यू, बिगर से हम स्मॉलर में करते हैं तो मल्टीप्लाई. अब ग्राम छोटी यूनिट है केजी से, सो स्मॉलर टू बिगर करेंगे तो डिवाइड होगा. सो 1250 डिवाइडेड बाई 1030, तो 3 के पहले क्या लगाएंगे? डेसिमल. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 1 पॉइंट. So let me write answer here 1.250. ठीक है, we got it. You can write in this way also. और यहाँ पे क्या पूछा है? केजी और ग्राम में करने को, तो 1 जो डेसिमल के पहले आ रहा है दैट मीन्स 1 क्या हो गया? केजी. एंड 250 जो डेसिमल के बाद है दैट इज ग्राम. ओके, सो राइट इट डाउन. ये पूरा यूनिट क्या हो गया? केजी. दिस इज नाउ व्हाट? केजी. सॉल्व इट, but you don't have to write answer like this. You have to write in this way because it is asked here 1 kg and 250 gram. So now let's do all the questions in the book. Okay, now see the book. Question number A. अब हम इसको बुक में करते हैं. 1 3 5 7 and 2 4 6 8. First answer is 7 kg 264 gram. Next we have done third one. This is 750 gram. Now 4 kg and half gram. So that means 4 kg means 4000 and half kg मतलब 500. तो 4500 gram. Do it. Next we have done this one also 1 kg and 250 gram. ना जब पॉइंट दिया हो तो दैट इज 5 kg और ग्राम कितना है? 8 ग्राम. नेक्स्ट 59.3. सो इट मीन्स 59 क्या है? kg एंड 3 मतलब आपका 300 ग्राम. अगर हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो 300 ग्राम हो गया. नेक्स्ट 9500 ग्राम. डू इट इन योर बुक्स. This is question number A. Write down all the answers in the book. These are the answers in the book you have to note down. Now after that we have to do question number B. Okay, whenever you are doing conversion you have to be very careful. बहुत ध्यान से करना है. Okay, so I hope that you have understood how to solve question number A. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में क्या करना है हमें? कन्वर्जन. दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 3, क्लास 4. नाउ यू आर स्टडिंग इन क्लास 5 ऑल्सो. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू टेक केयर दैट कि कौन सी यूनिट दी है. ठीक है, अगर हम बिगर यूनिट बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और छोटी यूनिट से स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट पे जा रहे हैं तो डिवाइड होगा. लाइक केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई. ग्राम से केजी में कर रहे हैं तो क्या होगा? डिवाइड. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो दिस कि हमें कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है. ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस विल बी फॉलोड इन ऑल 3, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, तीनों में फॉलो होगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन ए हमने किया, कॉपी में भी करना है सो दैट आप उसको समझ पाओ कि कैसे करते हैं, एंड बुक में भी कंप्लीट आपको करना है. Right, now I am going to explain you question number B that you have to do in your book only. सिर्फ book में करना है. Okay, so let's start. Okay, so now see question number B. आपका question number B है complete the table. Right, complete the table. It is on page number, you all know that 147. Okay, page number. So now सबसे पहले कॉलम है measurement. All right, second column है in bigger units. Okay, and then you have in smaller unit. Okay,
So now we need to convert it in all 3 units. Okay. So now see here. First question में आपको ये दिया है 6 kg and 300 gram. Okay. And this is also given 6.300 kg. And this is 6300 gram. First question is already done. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो. मेजरमेंट क्या है, 6 kg 300 ग्राम. अब इसको अगर हमें सिर्फ बिगर यूनिट में करना है, केजी में करना है, तो क्या करेंगे, 6.3 कर देंगे. केजी के बाद में हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट. 6.300 ग्राम. यहाँ पे केजी लिखना है. सो 6.300 क्या है आपका, ग्राम वाला पार्ट, क्योंकि हमने डेसिमल लगाया है. ये कौन सा पार्ट है, केजी का. सो केजी और ग्राम के बीच में हमें क्या लगा लेना है, डेसिमल. सो 6.300 केजी हो जाएगा ना. अब इसी को हमें जब स्मॉलर यूनिट में करना है तो ये डेसिमल हम रिमूव कर देते हैं. 6300 ग्राम हो गया. ओके. सो नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन. लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 kg. ठीक है, 5 kg 350 ग्राम. अब इसको हम जब बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 5 लिखा, देन पॉइंट, केजी है, केजी के बाद हमें बताया था अभी कि पॉइंट लगाना है. उसके बाद पॉइंट के बाद जो ग्राम की वैल्यू है वो लिख के इसको केजी करना है ना. जब हम इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर देना है. सो 5350 ग्राम हो जाएगा. गॉट इट. बिगर यूनिट में डेसिमल पॉइंट लगाना है एंड स्मॉलर यूनिट में रिमूव करना है. दैट्स इट. नेक्स्ट वी हैव 3.800 kg दिया है एंड और कुछ नहीं दिया है, और वी हैव टू राइट. अब 3 पॉइंट है तो 3 मतलब बिगर यूनिट है. सो 3 क्या हो गया, केजी, एंड डेसिमल के बाद जो होता है दैट इज योर ग्राम. वी ऑल नो नाउ. ये तो क्लियर पता है, राइट. सो अब यहाँ हम जब स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डेसिमल रिमूव कर देंगे. सो दिस विल बी नाउ 3800 ग्राम. Now, next we have 7.35 kg. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ओके. नाउ सो अब 7.35 kg है तो पॉइंट के पहले जो होता है दैट इज योर केजी, 7 kg. अब 35 इज योर ग्राम. तो 35 ग्राम भी आप लिख सकते हो, 350 ग्राम भी कर सकते हो. इसके बाद जब कोई डिजिट नहीं होता हम जीरो ऐड कर सकते हैं. यू कैन राइट 350 ग्राम और यू कैन राइट 35 ऑल्सो. अब यहाँ पे के लिए हमें क्या करना है, रिमूव करना है. 735 ग्राम हम नहीं लिख सकते बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग. सो यहाँ पे जीरोज मस्ट है. व्हाट इज, जीरो इज मस्ट, क्योंकि 4 डिजिट होने चाहिए ग्राम में जब आप लिखते हो. गॉट इट. आई एम टेलिंग यू हाउ. दिस इज 7.35 kg है. ठीक है, इसको ग्राम में करते हैं. यू ऑल नो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. देयरफॉर 7 kg इक्वल्स टू हो गया 7000 ग्राम. नाउ दिस इज 35. अगर हम ये करते 7000 प्लस 35, सो दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे है 7.35. सो 7000 ग्राम प्लस 350 ग्राम करेंगे. ठीक है, 350 ग्राम. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट्स मीन्स हम बाद में जीरो लगाएंगे. आगे अगर हमने लगा दिया तो दिस विल बी नाउ रॉन्ग. सो नाउ इट बिकम 7350 ग्राम. So that's why I have written this. Now last one. Last is 2595 gram. Okay. Now the last one, 2595 gram is given. अब जब हमें उसको बिगर यूनिट में करना है, we need to put the decimal 2.595 gram. Okay. kg here, ये हमने kg में कन्वर्ट कर दिया. This is your gram part, this is your kg. So 2.595 kg. अब इसको हम मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे. सो 2 डेसिमल के पहले है, सो दैट इज 2 kg एंड 595 ग्राम. सो कंप्लीट दिस टेबल. ऑलराइट, सो कंप्लीट दिस टेबल एवरीवन. रिमेंबर दैट कि अगर यहाँ पे जीरो लगाना होता 7 पॉइंट तो 035 क्वेश्चन में दिया होता. ठीक है, बट इट्स नॉट देयर. तो 7.35 दिया तो आप बाद में जीरो बढ़ा सकते हो. ओके, सो रिमेंबर दैट. ओके,
So now I hope that you have understood question number A and B both. Okay. Now complete the book exercise in your book and notebook work in your notebook copy. I have given the PDF in EduNext. So please just follow that and complete your work on time. Every day complete your work. Don't keep your work pending. If your works will be pending, then you will have to do lot of work together. So complete your work and have a nice day, students. Bye bye. Jai Hind. Take care.